Okay, dear student, now on your monitor there is a transaction. This is new transaction. Prepare 2-column cash book of Guru Dakshina brothers, and in bracket the information is given. Narration not required. Means in this cash book, in this 2-column cash book, we are not supposed to write the narration because instruction is given there, narration not required. So now the first transaction is there on March 1st 2019. Cash balance 13,000 and bank overdraft rupees 18,000. So here in this problem, this is new thing. Bank overdraft balance is given there, means this there is no positive balance of bank balance. This is negative balance. Bank balance is the negative, means overdraft balance is that. So this is the liability. So we have to show the bank overdraft to the credit side in the bank column. So this opening balance of cash we have to show to the debit side, that is to the receipt side in cash column, and the bank overdraft balance we have to show to the payment side to the bank column 18,000. And now what you mean by the bank overdraft? Actually in theory part I already explained you what is the bank overdraft. So now in this lecture again I am explaining about the bank overdrafts. Actually this facility is given to the current account holders only, businessman account. Bank overdraft means actually this is the facility. In this facility the businessman can withdraw more money than their standing balance. उनके खाते में जो भी पैसा है बिजनेस पर्पस के लिए, उस पैसे से वो ज़्यादा विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको एप्लीकेशन देना पड़ता है बैंक मैनेजर को और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन करना पड़ता है. और अगर बैंक मैनेजर ने अलाउ कर दिया तो फिर उनको जो है वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ग्रांट होती है. तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इट इज़ प्रोवाइडेड ओनली टू द करंट अकाउंट होल्डर. दिस फैसिलिटी इज नॉट प्रोवाइडेड टू द सेविंग अकाउंट होल्डर. So this is the overdraft balance. Therefore we have to show the overdraft balance to the payment side, to the cash book, and this 18,000 we have to show to the bank column. ये 18,000 हम बैंक कॉलम में दिखाएंगे, लेकिन ये पेमेंट साइड में आएगा. ये ध्यान देना है आपको. ओवरड्राफ्ट का अगर आया प्रॉब्लम में ट्रांजेक्शन में, तो उसको हमेशा बैलेंस हमको क्रेडिट साइड में ही दिखाना है. क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी और बैंक कॉलम में 18,000. देन आफ्टर दैट ऑन 2nd March रिसीव्ड फ्रॉम नेहा कैश रुपीज 1,700 एंड बेरर चेक रुपीज 500. तो यहाँ पे रिसीव्ड है तो इसका मतलब है कि ये कहाँ पे आएगा? रिसिप्ट साइड में आएगा. कैश है, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया है कि नेहा से कैश मिला है, तो आपको ये 1,700 कैश कॉलम में आएगा. और ये जो बेरर चेक है ये 500, मैंने इसके जो लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया हूँ लास्ट प्रॉब्लम में, कि अगर बेरर चेक होता है, इफ देयर इज इंफॉर्मेशन अबाउट द बेरर चेक, then we have to make the entry of bearer check to the cash column, and therefore this 500 also we have to show to the receipt side, but we have to show this 500 to the cash column. Suppose we must not show this to the bank column. This thing we should remember. This 500 we have to show to the cash column in cash book. So both this cash 1,700 as well as this 500 we have to show to the cash column. Or we can show the separate entry, or we can make combined 1,700 plus 500, we can show the 2,200 also in cash column. Otherwise we can show 1,700 separately and 500 separately. उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ऑन 7th March पेड टू धनराज रुपीज 6,000 बाय चेक. तो यहाँ पे पेड दिया है, पेड है, तो वी हैव टू शो दिस ट्रांजेक्शन, we have to show this entry to the payment side to cash book,
and we have to mention this 6,000 in the bank column because this payment is being made by the check, and therefore this 6,000 we have to show to the बैंक कॉलम. ये 6,000 की एंट्री बैंक कॉलम में हो जाएगा. देन आफ्टर दैट ऑन 8th March कैश सेल्स रुपीज 6,545 and discount allowed rupees 55. So this 55 we suppose not make the effect of this discount to the cash book. Only we have to show the effect of 6,545 to the receipt side of cash book because there is a sales, and therefore we have to show the effect of this transaction to the receipt side of cash book. So receipt side we have to write to sales account, and we have to write 6,545 to the cash column because this is cash sales is there. Clear cut instruction given about the cash sales, therefore we have to put effect of 6,545 to the cash column. And now then after that, the transaction on 10th March, check received on 2nd March 2019 deposited into bank. तो जो चेक 2nd मार्च को मिला था, ये देखो यहाँ पे 2nd मार्च को रिसीव्ड फ्रॉम नेहा बेरर चेक 500, this check 500, that is now on 10th March that is deposited to bank. So now it will have contra entry. Contra entry, I told you, when the effect of transaction is on both side of cash book, it is called as contra entry. So this 500 now we have to show to the cash book payment side, to the cash column, and then the corresponding effect we have to show to the debit side of cash book in bank column 500 rupees. So this 500 will have corresponding effect both side, receipt side as well as payment side, therefore this will be treated as contra entry. So the transaction on 10th March will have contra effect because this will have the effect to the both side of cash book, that is receipt side as well as payment side. Now on 12th March 2019 deposited into bank rupees 5,000. So this will also have the contra effect, deposited into bank rupees 5,000. So first we have to show the effect of this 5,000 to the payment side of cash book in cash column. पहले हमको कैश में से विड्रॉ दिखाना पड़ेगा ये 5,000 का, इसके लिए इसका इफेक्ट हम लोग पेमेंट साइड में करेंगे. उसके बाद में ये 5,000 का सेकेंड इफेक्ट हम लोग रिसिप्ट साइड में, कैश बुक के रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे, और ये 5,000 का इफेक्ट हम लोग कौन से कॉलम में लिखेंगे, बैंक कॉलम में. तो इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट दोनों साइड में भी होगा, पेमेंट में होगा और रिसिप्ट में होगा, लेकिन पेमेंट में कैश कॉलम में होगा और रिसिप्ट में बैंक कॉलम में होगा. एंड देयरफॉर दिस ट्रांजेक्शन विल हैव कॉन्ट्रा इफेक्ट. इसका कॉन्ट्रा इफेक्ट होगा, कॉन्ट्रा एंट्री होगी इसकी, तो इसके लिए इसका दोनों साइड में इफेक्ट होगा. उसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ऑन 13th March, गुड्स परचेज फ्रॉम प्राची ऑन क्रेडिट रुपीज 5,000. नाउ दिस इज क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. इसका इफेक्ट हम लोग कहां पे मारेंगे? गुड्स परचेज फ्रॉम प्राची ऑन क्रेडिट रुपीज 5,000. इसका इफेक्ट हम लोग कहां पे करेंगे? रिसिप्ट में करेंगे क्या पेमेंट में करेंगे? दिस इज क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. सोचो, हम लोग कैश बुक बना रहे हैं और कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही एंट्री होता है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन को देख करके आप पहले ये समझो कि ये कैश ट्रांजैक्शन है क्या.
whether this transaction is cash transaction. Of course your answer will be no sir, this transaction is not a cash transaction, because information is given very clearly that goods purchased from Prachi on credit rupees 5000. So this transaction will not have effect to the cash book. This transaction will not be recorded to the cash book because this is credit transaction. तो इसका इफेक्ट फिर कहाँ जाएगा? सब्सिडरी बुक को जाएगा. परचेस बुक बनाते हैं, परचेस रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, ये इसका इफेक्ट उसमें जाएगा. लेकिन यहाँ कैश बुक में इसका इफेक्ट नहीं होगा, तो इसका इफेक्ट हम लोग कैश बुक में नहीं मारेंगे. Now then after that 15th March 2019, चेक रिसीव्ड फ्रॉम नेहा रिटर्न डिसऑनर. इस ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखना है. यू हैव टू पुट प्रॉपर केयर on this transaction. Why I am saying like that? Because actually the transaction related to Neha, I think this is third transaction. First transaction it was on 2nd March, then second transaction it was on 10th March, and now on 15th March this is third transaction related to Neha. सो चेक रिसीव्ड फ्रॉम नेहा रिटर्न डिसऑनर. जो हमने यहाँ पे ये जो चेक बैंक में जमा किया था, अब ये डिसऑनर हो गया. डिसऑनर का मतलब होता है बाउंस हो गया, मतलब वो अकाउंट में पैसा नहीं आया. डिसऑनर का मतलब ये होता है कि आवर अकाउंट इज नॉट क्रेडिटेड, बिजनेसमैन अकाउंट इज नॉट क्रेडिटेड, दैट इज कॉल्ड डिसऑनर. और डिसऑनर का रीजन मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया था. व्हाई, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस व्हाई द चेक गेट बाउंस, व्हाई द चेक गेट डिसऑनर. सो तो यहाँ पे अब करना क्या है, जब हमने 10 मार्च का 10th मार्च का जो इफेक्ट मारा था, कॉन्ट्रा इफेक्ट, एक पेमेंट को और एक रिसीव को, तो हमने रिसीव साइड में बैंक में दिखाया था ये 500 को. तो अब वो डिसऑनर हो गया, तो इस उसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट हम लोग कहाँ पे मार देंगे? पेमेंट साइड में मारेंगे. पेमेंट साइड में कौन से कॉलम में लिखेंगे? बैंक के कॉलम में उसका एंट्री होगा 500 का, ये 500 का. तो उसका जो इफेक्ट हमने कैश बुक के डेबिट में मारा था, रिसिप्ट साइड में मारा था, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा. तो यहाँ पे ध्यान देना है, ये चेक रिसीव्ड फ्रॉम नेहा रिटर्न डिसऑनर, इसका मतलब है कि जो हमने रिसीव साइड में इफेक्ट मारा था उसको कैंसिल करने के लिए करस्पॉन्डिंग इफेक्ट हम लोग कहाँ पे मारेंगे? इसका पेमेंट साइड में, कैश बुक के पेमेंट साइड को. तो ऑटोमेटिकली वो उसका इफेक्ट, रिसिप्ट का इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा. तो इसमें आपको ध्यान देना है, सीधा इसका इफेक्ट हम लोग पेमेंट साइड में मारेंगे, 500 बैंक कॉलम में लिखेंगे. Then after that transaction on 20th March 2019, purchase goods from Sweety rupees 5000 at 7% TD. देखो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है, 7% ट्रेड डिस्काउंट है, तो वो ट्रेड डिस्काउंट हमको 5000 के ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा. और वो 5000 के ऊपर 7% निकालेंगे तो कितना आएगा? 350 आएगा. और 350 हम लोग 5000 में से माइनस करेंगे, और 5000 में से 350 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4650 आएगा. 4650 एंड पेड हाफ अमाउंट इमीडिएटली. अब 4650 का हाफ करेंगे हम लोग, तो 4000 का हाफ कितना हो गया? 2000, और 650 का हाफ हो गया 325. तो 2325 हम लोग उसको कहाँ दिखाएंगे? पेमेंट साइड में दिखाएंगे. पेमेंट साइड में कहाँ पे दिखाएंगे? कैश कॉलम में दिखाएंगे. तो इसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा? कैश बुक के पेमेंट साइड में आएगा. और उसका इफेक्ट कितना आएगा? क्या 5000 का आएगा? क्या नहीं. क्या 4650 का आएगा? क्या नहीं. तो 4650 का हाफ करेंगे जब हम लोग, तो वो आएगा 2325. तो 2325 का इफेक्ट हम लोग मारेंगे पेमेंट साइड में, और वो कहाँ पे मारेंगे? कैश कॉलम में. नाउ द ट्रांजेक्शन ऑन 22nd March,
बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1000, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया। यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है इंफॉर्मेशन given very clearly that this payment is being made by the bank directly. Insurance premium is paid by the bank. So the effect of this, it will go to the payment side of cash book, and payment side we have to write the buy insurance premium, and the effect of this 1000 we have to show to the bank column. And collected interest on investment 1650. This is also banking transaction. So interest is being collected by bank, and therefore we have to show the effect of this transaction to the receipt side of cash book, to interest on investment, and 1650 we have to show to the bank column. So now the information is very clear. This 1000 we have to show to the payment side as an insurance premium, and this 1650 we have to show to the receipt side of cash book as a interest on investment. And then after that, transaction on 24th March, check issued to Dhanraj was dishonored. So now we have to find out which transaction is related with the Dhanraj. The transaction on 7th March 2019 paid to Dhanraj 6000 by check. This 6000 check, now the information given on the 24th March that this 6000 check, now it got dishonored. So what we have to do now? The corresponding effect we have to show to the receipt side of cash book to Dhanraj account, and we have to show this 6000 to the receipt side in bank column. ये 6000 का इफेक्ट हम लोग अभी रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे कैश बुक के. कहाँ पे दिखाएंगे? बैंक कॉलम में दिखाएंगे. वी हैव टू शो टू द बैंक कॉलम इन कैश बुक. तो यहाँ पे चेक इश्यूड टू धनराज वो डिसऑनर्ड हुआ है. इसके लिए उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमने जो बिजनेसमैन ने जो चेक पेड किया था कौन से तारीख को? 7 मार्च को. वो चेक डिसऑनर हो गया. तो हमने 7 मार्च को इसका इफेक्ट 6000 का कहाँ दिखाया था? हमने इसका इफेक्ट पेमेंट साइड में दिखाया था बैंक के कॉलम में. तो अब इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट हमको डिसऑनर के लिए कहाँ पे मारना पड़ेगा? रिसिप्ट साइड में. रिसिप्ट साइड में टू धनराज अकाउंट, और ये 6000 का इफेक्ट हमको कहाँ पे दिखाएंगे? कैश कॉलम में, कैश बुक के कैश कॉलम में. Now the transaction on 26th March 2019. Gupta Stores directly deposited into our bank account rupees 7,500. ये कस्टमर ने, ये गुप्ता स्टोर कस्टमर है, ये कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में जमा कर दिया. कितना जमा कर दिया? 7,500. गुप्ता स्टोर्स डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू आवर बैंक अकाउंट रुपीज 7,500. तो इसके लिए ये हम इसका इफेक्ट कहाँ पे दिखाएंगे? कैश बुक के डेबिट साइड में, मतलब रिसिप्ट साइड में. और कौन से कॉलम में दिखाएंगे? ऑफ कोर्स वी हैव टू शो दिस टू द बैंक कॉलम, क्योंकि गुप्ता स्टोर ने डायरेक्ट कहाँ पे जमा किया है? बैंक में जमा किया है. सो वेयर वी हैव टू शो द इफेक्ट? इन द बैंक कॉलम. इन द बैंक कॉलम वी हैव टू राइट द 7,500. तो रिसिप्ट साइड में हमको लिखना है टू गुप्ता स्टोर्स अकाउंट, एंड इन बैंक कॉलम वी हैव टू राइट 7,500. Now the transaction on 30 March 2019. Transaction on 30 March 2019. Deposited cash in excess of rupees 3920 into bank. ये ट्रांजेक्शन मैं आपको जब सॉल्व कर रहा हूँ, अभी सॉल्व करते समय बताऊंगा, प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा. एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये जब हम लोग कैश बुक टैली करने लगेंगे तो जो कैश बुक का बैलेंस आएगा, कैश बुक का किसका बैलेंस? कैश का.
इसका एक्चुअली कॉन्ट्रा इफेक्ट होगा। तो वो कैश का जो बैलेंस आएगा, जैसे सपोज 13,920 आ रहा है, तो 13,920 में से 3,920 को बैलेंस दिखा करके और जो एक्सेस 10,000 रहेगा उसको हमने बैंक में जमा करना है। मतलब कैश में पेमेंट दिखाना है 10,000 का और फिर बैंक में रिसिप्ट दिखाने का है। मतलब वो 10,000 का दो जगह इफेक्ट आएगा। एक तो इफेक्ट आएगा इसका कैश बुक के पेमेंट साइड में, कैश कॉलम में, और दूसरा इफेक्ट आएगा कैश बुक के, पहला जो इफेक्ट आएगा वो कैश बुक के पेमेंट साइड में बैंक कॉलम में, और दूसरा इफेक्ट जो आएगा वो कैश बुक के रिसिप्ट साइड में कैश कॉलम में आएगा, सॉरी बैंक कॉलम में आएगा। तो ये मैं आपको अभी सॉल्व करते समय बताता हूँ ये कैसे किया हमने। तो अभी ये हो गया। नाउ आई एक्सप्लेन द टोटल प्रॉब्लम theoretically. Each transaction I explain you, and if you are having little bit doubt regarding any one transaction in this, so while I will solve the same transaction practically, during that time I will try to solve your doubts. Okay, now the first transaction, there is the opening balance transaction. That cash balance is there 13,000. So for cash balance we have to write first here year 2019 and then March 1st. To balance brought down, because opening balance we must show like that, to balance brought down. In cash column we have to write 13,000. And then overdraft facility is there. As I told you, overdraft facility, this is the negative balance of bank account, and therefore we have to show opening balance to the credit side, that is payment side, by balance brought down. In bank column we have to write 18,000. And in date again we have to write here 2019 and March 1st. So now this both is the opening balances. Cash, this is the positive balance, and therefore I shown to the receipt side, and this bank is the negative balance, therefore we show to the payment side by balance BD 18,000. Okay, now the transaction number second is there. Received from Neha cash rupees 1,700 and bearer check 500. तो नेहा से कैश मिला 1,700 और चेक मिला 500। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 1,700 और 500 दोनों को प्लस करेंगे तो 2,200 आएगा, क्योंकि दोनों का इफेक्ट हमको कैश कॉलम में ही करना है रिसिप्ट साइड में। सो वी हैव टू शो दिस टू द रिसिप्ट साइड इन कैश बुक, दैट इज ऑन 2nd March to Neha account. And in cash column we have to show 2,200. How 2,200 came, just you understand, we plus 1,700 cash and plus 500 bearer check, and the total of that it came 2,200. Now transaction that is on 7th March, paid to Dhanraj rupees 6,000 by check. So this is the payment, and so we have to show the effect of this to the payment side. Payment side we have to write here date first 7th by Dhanraj account. And this payment is being made by check, so we have to show the effect of 6,000 in bank column 6,000. Then transaction on 8th March, cash sales rupees 6,545 and discount allowed 55. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि डिस्काउंट की एंट्री हम लोग कैश बुक में नहीं करते हैं, नहीं होगा।
तो ये डिस्काउंट की एंट्री हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग एंट्री करेंगे 6545 का। तो कैश सेल्स है, इसकी एंट्री रिसिप्ट में होगी। तो रिसिप्ट साइड में हम लोग लिखेंगे इसको, डेट है 8 मार्च, सो हियर वी हैव टू राइट 8 एंड हियर वी हैव टू राइट टू सेल्स अकाउंट। And in cash column we have to write 6545. And then on 10th March, check received on 2nd March 2019 deposited into bank. तो वो 500 का जो था 2nd March को, if you are having transaction with you, please look the transaction on 2nd March, bearer check 500 जो नेहा से रिसीव हुआ था, वो 500 अब उस चेक को बैंक में जमा करता है बिजनेस में। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले पेमेंट में, कैश में पहले हम लोग पेमेंट दिखाएंगे 500 का, एंड पेमेंट साइड वी हैव टू राइट बाय बैंक अकाउंट, एंड हियर डेट वी हैव टू राइट दैट इज 10th. And now the corresponding effect we have to show to the receipt side also. As I told you earlier, while I explained theoretically, it will have contra entry, contra effect. So again we have to write to the debit side date 10th March to cash account 500. Simple logic, try to understand. जब हम लोग कैश में इफेक्ट मारेंगे तो यहाँ बैंक लिखेंगे, और जब बैंक में इफेक्ट मारेंगे तो यहाँ कैश लिखेंगे, एंड एलएफ में हम लोग सी लिखेंगे क्योंकि दिस इज द सिंबल फॉर कॉन्ट्रा एंट्री, इनके सामने सी लिखेंगे। नाउ 12th March डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹5000, इसका भी कॉन्ट्रा एंट्री होगा क्योंकि हमको पेमेंट दिखाना पड़ेगा कैश से 5000 और फिर रिसिप्ट दिखाना पड़ेगा 5000 का, देयरफॉर दिस विल हैव कॉन्ट्रा इफेक्ट। तो पेमेंट में हम लोग पहले डेट लिखेंगे 12th March बाय, कैश में लिखेंगे तो यहाँ बैंक लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और कैश में इफेक्ट मारेंगे 5000 का, एंड देन रिसिप्ट साइड आल्सो वी हैव टू शो, क्योंकि ये जो हमने विड्रॉ किया है कैश में से, अब ये कहाँ पे आएगा, बैंक में आ जाएगा 5000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और बैंक कॉलम में नाउ इट विल कम 5000, और एलएफ में इसके सामने भी फिर से हम लोग कैपिटल में सी शो करेंगे क्योंकि ये भी कॉन्ट्रा इफेक्ट है। तो कॉन्ट्रा इफेक्ट है ये। देन उसके बाद ट्रांजेक्शन ऑन 13th March, गुड्स परचेज फ्रॉम प्राची ऑन क्रेडिट ₹5000। अब ये भी मैंने आपको बताया था कि ये परचेज किया है, सो ट्रांजेक्शन ऑन 13th, गुड्स परचेज फ्रॉम प्राची ऑन क्रेडिट ₹5000। अर्लियर I told you this is credit transaction, so suppose we must not make the effect of this transaction in cash book, तो इसका इफेक्ट नहीं होगा कैश बुक में। Now the transaction on 15th March, check received from नेहा return dishonor। तो नेहा का जो चेक था वो डिसऑनर हो गया, मतलब ये 500 का जो चेक था ये 10 तारीख को, ये 10th March को जो हमने ये कॉन्ट्रा इफेक्ट मारा था, इसके ऊपर ध्यान देना है हमको। 500 रुपीज हमने कैश से पेमेंट दिखाया था, बाद में ये हमने बैंक में रिसिप्ट दिखाया था। तो अब ये डिसऑनर हो रहा है, ये डिसऑनर हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है, तो अब इसका इफेक्ट हमको क्या करना है, खत्म करना है। तो इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल चीज है कि इसका अब करस्पॉन्डिंग इफेक्ट हम लोग पेमेंट में दिखा देंगे।
इसका करस्पॉन्ड, ये 500 का करस्पॉन्डिंग इफेक्ट पेमेंट में दिखा देंगे तो वो डिसऑनर का इफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है बाय नेहा अकाउंट, पेमेंट साइड में बाय नेहा अकाउंट, और ये 500 बैंक कॉलम में है तो यहाँ पे हमको बैंक कॉलम में दिखाना है 500। ये हो गया इसका डिसऑनर का एंट्री 15 मार्च। उसके बाद में 20 तारीख को 20 मार्च को परचेस गुड्स फ्रॉम स्वीटी 5000 एट 7% टीडी। तो ये 5000 के ऊपर 7% टीडी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 350 आएगा, और फिर 350 हम लोग 5000 में से माइनस करेंगे तो 4650 आएगा, और 4650 को हम लोग आधा करेंगे, हाफ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2325, 2325, क्योंकि इंफॉर्मेशन वहां पे डायरेक्ट दिया हुआ है, पेड हाफ द अमाउंट इमीडिएटली। तो यहाँ पे पेमेंट साइड में उसकी एंट्री मार देंगे हम लोग 20 मार्च को बाय परचेस अकाउंट, बाय परचेस अकाउंट, और यहाँ पे 2325, 2325। लेकिन यहाँ पे ये इफेक्ट हम लोग बैंक में नहीं दिखाएंगे, कैश में दिखाएंगे। तो इसका इफेक्ट हो गया 20 मार्च का। कैसे कैलकुलेट किया है वो आपको बता देता हूँ। पहले 5000 का 7% रेट डिस्काउंट निकालना है, वो 350 आएगा। 350 5000 में से माइनस करना है, और फिर उसके बाद में बैलेंस अमाउंट को आधा करने गए, देन इट विल कम 2325। उसके बाद में 22 मार्च को पेड बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम 1000, तो इसका पेमेंट साइड में एंट्री आएगा 22 मार्च बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, और इसका बैंक का ट्रांजेक्शन है तो यहाँ पे बैंक में आएगा ये 1000, और जो कलेक्ट हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट उसको हमको रिसिप्ट में दिखाना है 22 को टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बैंक कॉलम में लिखना है उसको 1650। जो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड हुआ बैंक में 1000, उसके बाद में इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ वो रिसिप्ट साइड में बैंक में 1650। देन आफ्टर दैट 24 मार्च को चेक इशूड टू धनराज वॉज डिसऑनर्ड। धनराज को जो चेक इशू किया था वो डिसऑनर हो गया। तो धनराज का कौन सा ट्रांजेक्शन पहले का था, 7th का, ये 6000 जो कि हमने पेमेंट में दिखाया है, ये 6000। अब ये डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया मतलब है कि इसका हमको करस्पॉन्डिंग इफेक्ट कहाँ पे दिखाना है, रिसिप्ट साइड में दिखाना है बैंक में 6000, और यहाँ पे लिखना है रिसिप्ट साइड में टू धनराज अकाउंट। और यहाँ पे डेट डालना है 24। और फिर उसके बाद में है गुप्ता स्टोर्स डायरेक्टली डिपॉजिटेड टू आवर बैंक अकाउंट ₹7,500। तो ये रिसिप्ट में आएगा 26 को टू गुप्ता स्टोर्स।
डायरेक्ट हमको बैंक में दिखाना है 7,500। और अब जो लास्ट वाला ट्रांजेक्शन है जो कि मैंने आपको बोला था, मैं अभी जब प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा। डिपॉजिटेड कैश इन एक्सेस ऑफ 3920 इन बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग इसको 3 लाइन छोड़ देंगे, 3-4 लाइन छोड़ करके अभी टैली टोटल का कॉलम बनाएंगे। और यहाँ पे ये 31 मार्च को बाय बैलेंस सीडी लिखेंगे। और ये बाय बैलेंस सीडी में 3920 हम यहाँ पे कैश में दिखाएंगे, क्योंकि ये कैश को इतना बैलेंस हमको रखना है। ये इंफॉर्मेशन लास्ट वाले ट्रांजेक्शन में वो इंफॉर्मेशन क्लियर कर दिया है कि 3920 को रख करके जो बैलेंस एक्सेस बचेगा उसको हमको कहाँ जमा करने का है, बैंक में। तो सबसे पहले अभी हम ये कैश का टोटल मार लेंगे। कैश में फर्स्ट अमाउंट है 13,000, 2,200, 6,545। इन तीनों का टोटल आएगा 21,745। और उसके बाद में बैंक का हम लोग टोटल मारेंगे 500, 5,000, 1,650, 6,000, 7,500। लेकिन बैंक का टोटल अभी हम लोग नहीं मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने इसका बैलेंस निकालना है, सरप्लस कितना है वो निकालने का है इसको, जो कि हम बैंक में जमा कर रहे हैं। तो ये टोटल हम लोग कैश वाला जो 21,740 आया है उसको हम पेमेंट साइड में लिखेंगे 21,745। अब ये टोटल मारेंगे, ये सब टोटल मार के और इसको इसमें से माइनस करेंगे 21,745 से। तो यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा वो 10,000 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 10,000। और फिर ये कैश विड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 30। और फिर ये जो 10,000 हमारा बैलेंस है, एक्सेस है, वो एक्सेस हम लोग कहाँ जमा कर रहे हैं, बैंक में। तो रिसिप्ट साइड में भी इसको हमको दिखाना पड़ेगा टू कैश अकाउंट, और बैंक कॉलम में लिखना पड़ेगा 10,000। ये 10,000 कैसे आए समझ लो, 500 प्लस 5,000 प्लस 2,325 एंड प्लस 3,920, ये चारों को प्लस करेंगे हम लोग, और प्लस करके उसको 21,745 में से माइनस करेंगे तो ये हमको एक्सेस मिल जाएगा 10,000। और फिर ये 10,000 यहाँ पेमेंट दिखा के फिर यहाँ पे इसको रिसिप्ट साइड में बैंक में जमा करते हैं, और यहाँ पे भी डेट आएगा 30। और अब इसको टैली करना है बैंक को। तो बैंक का टैली 500, 5,000, 1,650, 6,000, 7,500, 10,000, इसका टोटल आएगा 30,650। सेम टोटल हमको पेमेंट साइड में लिखना है 30,650। और अब पेमेंट साइड में 18,000, 6,500, 1,000, ये सबको प्लस करना है। मतलब 18, 6, 24, 24 प्लस 1,000, 25, 25,500, 25,500 ये इसमें से माइनस करने का है, 30,650 में से माइनस करने का है। तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 5150। यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट साइड में 5150, और ये बैलेंसिंग फिगर हो गया बैंक का। और अब इसको जो है, ये जो क्लोजिंग बैलेंस आया हमारा, ये क्लोजिंग बैलेंस को अभी यहाँ पे ओपनिंग दिखाना पड़ेगा। वी हैव टू शो ओपनिंग टू द कैश बुक डेबिट साइड। तो यहाँ पे मार्च के बाद अप्रैल आएगा, वी हैव टू राइट हियर अप्रैल 1st। और यहाँ पे डेबिट साइड में, रिसिप्ट साइड में वी हैव टू राइट टू बैलेंस बीडी।
और कैश वाला जो अमाउंट है वो कैश में लिखेंगे 3920 और बैंक वाला अमाउंट बैंक को लिखेंगे 5150. So this is the opening balance for the April. So now in this lecture we completed this problem. In next lecture we will solve some new transaction.